अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज का वेबिनार सीरीज नंबर 49 के साथ हम हाजिर हैं। तो आज समझें कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला वेबिनार है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और हमेशा की तरह एक नया टॉपिक, नए स्पीकर्स और लर्नड स्पीकर्स के साथ हम आए हैं। और आज का एक जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जमाना फास्ट हो गया है, इंडस्ट्री फास्ट हो गई है, चीजें बहुत स्पीड पे चलने लगी हैं। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फाइंडिंग हार्मनी, स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खासतौर पे जो अभी हम पिछले एक उसमें बात कर रहे थे, अपने बल पे का हमारा वेबिनार था कि जो जेनजी है ना, जेनजी की पहली डिमांड वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं जेन एक्स का हूँ। लास्ट टाइम हमारे दो स्पीकर्स मेरे साथ थे, वो मिलीनियल्स थे। और हम यही बात कर रहे थे कि जेनजी को कैसे मैनेज करें, जेनजी के साथ कैसे काम किया जाए। तो जेनजी आके इन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि जी किधर है वर्क लाइफ बैलेंस, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो आज हमने दो बड़े लर्नेड स्पीकर्स को अपने साथ इनवाइट किया है। मैं उनकी दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दूं। पहले स्पीकर हमारे साथ है फरखलीत इकबाल साहब, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सीसीएल होल्डिंग। Farqli Iqbal Sahab has more than 20 years of experience in leading human resource in FMCG, pharmaceuticals, engineering, education, international non-profit sectors, while working with multinational senior management teams to international labor unions. In his previous organizations such as LUMS, British Council, Nestle, and Descon, Farqli Sahab has led diverse and multicultural teams in regional and country-based roles. He is a certified coach from Profiler, Corn Ferry, and coaching trainer, and has led organizations wide change management initiatives. He is an experienced competency based recruiter and trainer and has successfully managed leadership and talent interventions for businesses across the value chain. Farkalit has formal education in business and economics and has interest in the neurochemistry of human behavior and the integration of technology and business. फरकली साहब, वेलकम टू एएस के वेबिनार। आप पहले भी आ चुके हैं, पहले भी आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू एएस के वेबिनार। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. और आज की दूसरी लर्नेड स्पीकर हैं, इन्होंने आज पहली दफा हमारे वेबिनार में ही, फरकली साहब पहले भी आ चुके हैं। उजमा सफदर साहिबा। उजमा सफदर साहिबा इज ग्लोबल एचआर हेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल लोकेशंस, हेड ऑफ एचआर एंड एडमिन, हर्बियन पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। Uzma Safdar, Global HR Head at Herbion, where she also leads admin, HSC, and corporate communications. With 15 plus years across multinational and national organizations, she had built performance and leading learning cultures, implemented end-to-end HRMS, managed HR for 2,000 plus employees across 4 manufacturing units while overseeing international HR in over 20 countries. Her track record includes reducing cost per hire by 65%, launching campus recruitment and employer branding initiatives, and strengthening employee voice through Coffee with HR and feedback forums. A seasoned trainer and former visiting faculty at Karachi University, she is passionate about enabling people and organizations to thrive, perfectly aligned with today's theme of finding harmony and work-life balance. Please join me in welcoming Uzma. Uzma, thank you so much for giving time, but the last minute पे हमने आपको रिक्वेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हम इंशाल्लाह जरूर फायदा उठाएंगे आपके प्रेजेंस का। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, टॉपिक पे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का वेबिनार जी, to discover effective strategies for achieving a better work life balance. We will explore the importance of balancing work and personal life and provide practical tips and techniques for managing stress, prioritizing self care, and maintaining a healthy work life balance. Whether you are a busy professional or simply looking to improve your overall well being, this webinar is for you. तो फरकली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे इसलिए मैंने रेफरेंस दिया कि जब हम पिछले यूथ के लिए जो हमारा वेबिनार होता है उसमें हम बात कर रहे थे, तो था कि आज का जो नई जनरेशन आ रही है, देखिए इस वक्त जनरेशन एक्स, मिलियनर्स और जेनजी तीनों मार्केट में, जी जी बिल्कुल। और वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऑडियंस हमारी प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सीजन प्रोफेशनल्स भी हैं। तो आप बताएं, आपके हिसाब से ये क्या चीज है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट है, क्या है? चलिए, थैंक यू वेरी मच परम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। सो एक ऑफ कोर्स है अबाउट द जनरेशंस, राइट, दैट यू सेड, एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ ये वर्क लाइफ की जो डिस्कशन चलती आ रही है। सो आई थिंक जनरेशनल काफ़ी फ़र्क है, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम हम थोड़ी ज़ाहिर है अब उस जनरेशन से हैं जिसका जिक्र कम कम होना शुरू हो गया है। सो
उस जमाने में वर्क ऑफ लाइफ रिलेटिवली आसान था मैनेज करना, बिकॉज टेक्नोलॉजी कम थी, राइट, एसेंशियली स्पीकिंग. सो वी मैंने started working in 90s, right? So essentially, उसका emails वगैरह कम थी, lot of physical files and things are pretty mechanical, I would say. या फिर automations आ गए, digitalizations आ गई, AIs, और करते करते अब हम इस पैच पे पहुंच गए हैं. where technology हर तरफ है, speed बहुत ज़्यादा है, the boundaries between timings between day night, global timelines वगैरह बिल्कुल बदल गई हैं. And you understand, अब तो essentially हम एक मुल्क में बैठे हैं, and we are managing multiple countries और सारा कुछ. So दो ट्रेंड्स हैं. एक ये कि ऑफ कोर्स जनरेशंस के मूवमेंट से essentially लाइफ का तरीका ही बदल गया. सो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये हुआ. सो पहले वर्क लाइफ जिसे कहते हैं, या आउटसाइड ऑफ वर्क उसे कहना चाहें, बिकॉज मेरे नज़दीक लाइफ तो टोटली है ना, उसके अंदर से कुछ ऐसा आप काम करते हैं, कुछ ऐसा आप जाहिर है आराम करते हैं, और कुछ ऐसा ऐसा है जो आप फैमिली, अपने इंटरेस्ट और बाकी अपनी आउटसाइड ऑफ वर्क चीज़ों को दे रहे होते हैं. सो लाइफ इज़ अ बिगर सेट एंड देन वर्क इज पार्ट ऑफ इट व्हाट यू डू. सो पहले ज़रा बाउंड्रीज आसान थी, वक्त अलग थे, 8-8 घंटों में डिवाइड हुआ हुआ था दिन. मैंने 24 घंटे में between the 24 hours, you gotta work for 8 hours, sleep, rest, whatever you want to for 8 hours, and then do rest of the things during the next 8 hours. So it was easier. अभी चूंकि टाइम की बाउंड्रीज बदल गई हैं, टाइम एथिक्स बदल गई हैं, सो हमें बेसिकली तरीकाकार बदलना है. एंड इसेंशली जो वर्क लाइफ था वो बैलेंस हुआ, बैलेंस से हार्मनी हुआ. और आजकल तो नई टर्म्स हमने सुननी शुरू कर दी, विच इज़ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, के essentially लाइफ ही है जिसमें आपने वर्क करते रहना है साथ में, वेन एवर एंड वट एवर इज रिक्वायर्ड. सो जरूरी नहीं कि आप 9 से 6 करें काम. फेयर इनफ, इफ यू आर 9 बजे आपकी कोई मार्केट, कोई मुल्क जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो सुबह 6 बजे काम करी, तो उसका अपना टाइम है, आपका अपना टाइम है, आप जिस जोग्राफिकल बाउंड्री में. सो स्पेंड योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, एंड देन वर्क अलॉन्ग साइड इट. अब तो वो वाला है. एंड आई थिंक नथिंग अगेंस्ट द न्यू जनरेशन, आई एम रियली लविंग द वे दे वर्क. मेरे वो कहते हैं जिंदगी है, इसको अच्छे तौर पे हर लम्हे को गुजारना है, इसके दौरान में काम आ जाता तो वो भी कर लेते हैं. गुड अप्रोच टू डू. जबकि हमारी अप्रोच फर्क थी, हम कहते थे काम ही जिंदगी है, इस दौरान में अगर वक्त मिल गया तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे. सो सो डिफरेंट अप्रोच, अ गुड अप्रोच, बट डिफरेंट माइंडसेट. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू. और इफेक्ट है अभी, अब एहसास होता है इस तरह के. मैंने तन मन धन लगा के काम किया करते थे, चीजें जो थी वो 12 बजे रात को 2 बजे तक काम करना, 3 बजे तक काम करना. कुछ पोर्शन मेरा, मैं कराची में गुजरा, 12-1 बजे ऑडिट से फारिग होते थे. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली. उसके बाद लाइब्रेरी जाके पढ़ना होता था, चीजें करनी होती थी. और बट स्टिल कुछ टाइम ऐसे थे जिसमें जो चीजें आज नहीं हो सकती थी, मिसाल के तौर पे पेमेंट्स. अभी जब हम ये वेबिनार स्टार्ट करने वाले थे तो मेरे जो जीएम फाइनेंस है वो आज वो एक असाइनमेंट पे, तो जो उसके नीचे मैनेजर फाइनेंस है उसका मुझे मैसेज आया कि सर ये अर्जेंट पेमेंट है, बहुत अर्जेंट है. मैंने कहा मैं वेबिनार कर रहा हूँ. तो पहले ये नहीं हो सकता था, पहले चेक साइन होता था. तो चीजें बड़ी डिफरेंट थी, टाइम्स. अब वो सारी चीजें सुकड़ गई हैं, तो बैलेंस करना और मुश्किल हो गया. ये क्वेश्चन पहले भी था, वर्क लाइफ बैलेंस. मुझे आज भी याद है जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ 97 में. इश्यूज उस वक्त भी थे वर्क लाइफ बैलेंस के, बट अब इतनी फास्ट हो गई है कि इश्यूज बढ़ गए. उस्मा, आपकी तरफ आते हैं. एचआर देख रही हैं, 15-2000 प्लस एम्प्लॉयज को मैनेज किया, इतने मुल्कों को मैनेज किया. ये टॉपिक, ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, क्यों है, कैसे इसको डील करना चाहिए, बताइए. अच्छा, थैंक यू सो मच. जिस तरह से ये इस टॉपिक पे हमने बात करना स्टार्ट की, और मैं बिल्कुल रिलेट करूंगी हमारे जो प्रेजेंटर हैं इनकी बात से भी. लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की, मैं उन पे दोबारा बात नहीं करूंगी. बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे उनकी इनकी बात को ही सेकंड करूंगी. बट हाउ आई सी वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है, पर्टिकुलरली 2020 के बाद जितनी तेजी से दुनिया चेंज हुई, ये जो डिजिटल एरा आया, कोविड के बाद का टाइम, और फिर ये एआई के आने से, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे हो गई. तो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे हुई, तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उस वो प्रोफेशनल लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करती है. या वो वर्क प्रेशर, और फिर जब हम ग्लोबली चले गए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जैसे सीसीएलबी इंटरनेशनल लोकेशंस पे है, तो हमें टाइम डिफरेंस में काम करना होता है. सेम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही है कि डिफरेंट कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं और उनके डिफरेंट टाइम जोन्स हैं. अब
इसके अंदर जो है वर्क लाइफ बैलेंस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है आज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, ऑल्दो जेन ज़ी भी इस पे बात करती है और हमारे लिए भी ये ज़रूरी इसलिए है कि जब इतना फास्ट पेस हो गया है ना और काम बहुत ज़्यादा है, तो एट द सेम टाइम एक स्ट्रेस आपके ऊपर आता है। अब आप जब इसको वर्क लाइफ बैलेंस देखते हैं तो नॉर्मली पहले क्या था कि हम दो चीज़ों की बात करते थे, हम एक अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते थे, सेकेंडली हम बात करते थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की। मैं थोड़ा सा इसको 3 एरिया में डिवाइड करती हूँ। एक आपकी जो पर्सनल लाइफ है जिसमें आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो ऑफिस के काम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक थर्ड बहुत अहम एरिया है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं या नॉर्मली थर्ड नंबर पे रखते हैं। मुझे ऐसे लगता है जो आपका पर्सनल, जो आपका सेल्फ है, वो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करते हैं तो फिर आप बेटर अंदाज में अपनी पर्सनल लाइफ, जिसमें आपकी फैमिली और आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं, उनको भी अच्छे से निभा पाते हैं, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है आप उसको भी बहुत बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में अगर ये जो 3 बॉल हैं, इन 3 बॉल्स को हम एक वक्त में 2 हाथ में रहे और तीसरी हवा में रहे, जितना बेहतर हम इन 3 बॉल्स के साथ प्ले करें, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए लाइफ ईज़ी हो जाए, या हम अपनी चीज़ों को जो है वो मीट कर पाएँ विद अ हेल्दी लाइफ एज़ वेल। थैंक यू सो मच। चलें, वेरी गुड, आगे बढ़ाते हैं। फकीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, हम काम कर रहे हैं, आप भी, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में काम किया, मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, ऑपरेशंस भी डील करता हूँ, अब अपना बिजनेस है, पहले जॉब करता था तो ऑपरेशंस वगैरह। बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको सेट किया जाए एज ए सीनियर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज ए इंडिविजुअल? इसलिए कि जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोग, एक तो चले वाकई ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर होते हैं, एक होता क्या है कि हम समहाउ झिझक में बाउंड्री सेट नहीं करते, और उसकी वजह से जो है ना बैलेंस ज्यादा बिगड़ता है। तो एक बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंस है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज इन मेंटेनिंग और स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस? ओके, अच्छा। देखिए, मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग डिबेट है, आई वुड से। देखें, क्वेश्चन में इसलिए नहीं कह सकता कि जाहिर है ये तो एक डिबेट है जो चल रही है, उसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर तो नहीं है। ऐसे अभी उस्मान ने कहा, इट्स लाइक जगलिंग द बॉल्स, और वो बॉल्स भी ग्लास बॉल्स जिस तरह कहते हैं कि जगलिंग द ग्लास बॉल्स, एंड एक केक भी गिरेगा तो ग्लास है, टूट जाएगा। सो आप, we can't really drop either of the balls, or you still have to sort of juggle between these magic wands, so to say, जो है आपने लेके चलने हैं। तो देखिए, उसमें मेरा अपनी राय है। वो ये कि देखें, आपको अपनी बाउंड्रीज या अपनी प्रेफरेंस खुद सेट करनी है, विच इज़ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? तो आपकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? आपके लिए ना अपना फेथ, पर्सनल टाइम अगर इम्पोर्टेंट है तो दैट्स योर कोर प्रायोरिटी, वो है। अगर आपके लिए फैमिली फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, वो है। अगर आपके लिए फर्म एंड यू नो ऑल द प्रॉफिट्स वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके लिए है। अगर आपके लिए पर्सनल कमिटमेंट, पर्सनल अचीवमेंट लेवल्स, वो है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी वर्ल्ड फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। अगर देखें, एक टाइम में एक ही लेंस से देखा जा सकता है, मल्टीपल लेंस से जब आप जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है फिर जरा थी ना थोड़ी, कि आपने समझना है कि जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। अगर आपके लिए कैरियर, राइट, एंड देन जरूरी है, और आप ये कहते हैं कि सब कुछ मैं लगा दूंगा, प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको, क्योंकि जीरो सम गेम तो है नहीं, ठीक है। सो जाहिर है थोड़ा सा टाइम, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे हैं, तो अगर आपने जाहिर है कहीं से टाइम देना, तो कहीं ना कहीं से टाइम तो आपको निकालना ही है ना जी। सो उस निकालने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू देन सी हाउ यू मैनेज इट, एंड हेंस आई एम सेइंग बैलेंस मुश्किल है। इसलिए जो अच्छी टर्म्स हैं जो आ गई हैं अब, जिस तरह मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस के बाद वर्क लाइफ हार्मनी आई, आजकल वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कहना शुरू हो गई हैं हमारी बहुत से लिटरेचर। इसका मतलब है कि पहले हम कहते थे अलग अलग रखो, फोकस करो, प्रायोरिटी करो, अब हमें कहते हैं इसी का हिस्सा बना लो।
और चूंकि टेक्नोलॉजी और टूल्स आ गए हैं जो अलाउ करते हैं, राइट? देखें, अब आपको फिजिकली हर वक्त किसी लैपटॉप पे आके बैठना, लैपटॉप ही क्या, पहले तो डेस्कटॉप थे, राइट? सो एसेंशियली वो खत्म हो गए। फिजिकली तो किसी डब्बे की जरूरत नहीं है, आपको लैपटॉप चाहिए था वो भी खत्म हो गया काफी हद तक। आपके पास सॉफ्टवेयर, मोबाइल्स में सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको फिजिकली मौजूद होना जरूरी नहीं कि हर वक्त हो। सो जहाँ तेजी आई है, जहाँ टेक्नोलॉजी आई है, रिक्वायरमेंट बढ़ी, उतनी आसानियां भी बहुत पैदा हो गई हैं। एंड आई थिंक हर जमाना जो होता है उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिनको ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। So I think technology is important. So आपके, to summarize your sort of question and my sort of point of view is prioritize yourself, right? आपके लिए क्या important है? Career important है, wellness important है, family important है। पहले वो क्लियर जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ देना, ऑफ कोर्स लेके चलना है आपको, लेकिन जरूरी है कि ये देख लीजिए कि उन 8 घंटों में से हार्डली स्पीकिंग किसको ज्यादा आपने इन्वेस्ट करना है। और 8 में इसलिए कह रहा हूँ, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट इनटू सर्टेन बॉक्सेस इन सॉर्ट ऑफ योर डे। अदरवाइज तो ऑफ कोर्स कुछ वीक बिजी होंगे, तो किसी दिन दिन का शुरू का टाइम जनरली स्पीकिंग फ्रॉम 9 to 1 or 2 जनरली बहुत बिजी होता है इन सर्टेन केसेस, कुछ शाम में बिजी होते हैं। सो डायनामिक है, कोई फिक्स रूल नहीं, बट ये याद रखें कि आपका लेंस प्रायोरिटी का क्या है, एंड यूज टेक्नोलॉजी एज मच एज यू कैन फॉर योर एडवांटेज। और तीसरी चीज जो जाहिर है अभी मैंने शुरू में जिक्र नहीं किया, मैनेज सॉर्ट ऑफ पीपल। आपके पास जो टीम्स हैं वो, उनको जितना आप अच्छे तौर पे डेलीगेट करेंगे, समझेंगे कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज आपसे बेहतर हैं। आप एक इंसान हैं और आपकी टीम जाहिर है एक से ज्यादा हैं, जो सम ऑफ देयर इंटेलिजेंस, सम ऑफ देयर कॉम्पिटेंस इज जनरली मोर देन व्हाट यू इंडिविजुअली हैव। सो यूज देम एंड पॉजिटिव अप्रोच रखें चीज़ों के बारे में। काम बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तेजी आ रही है, मुश्किलात, बिजनेस, सब कुछ है, बस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और नई जनरेशन इतनी अच्छी आ गई है ना, हु आर सो एफिशिएंट, सो फास्ट एंड सो एजाइल। वो तो आना भी नहीं चाहती बात का दफातर में और मुख्तलिफ जगहों पे। सो आप उसको भी इस्तेमाल किया जाए। सो आई थिंक जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि हर मसला एक मौका होता है, जिस तरह इंग्लिश में किसी में एक ज़माने में कहा करते थे, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वो उसको इस्तेमाल इस लिहाज से करें, अपना लेंस क्लियर रखें कि पर्सनल वेलबींग मेरे लिए ज़रूरी है। तो चाहे वक्त, मीटिंग जो भी होगी, अगर मैंने उस टाइम पे अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी है, या मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है, या मुझे खाना खाना है, या मुझे नमाज पढ़नी है, या मुझे जो भी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है, तो उसको अपनी जगह बरकरार रखिए। और थिंग्स वुड वर्क अराउंड यू, पीपल वुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंसेस आल्सो। थैंक यू सो मच। तो एक एलिमेंट जो मैं देखो, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, हमारा अगला टॉपिक ये था कि अपने अपने आप की प्रायोरिटी जो आपकी है जी उस चीज को नजर में रख के चीजों को काम करें। उसमें मैं आपके पास आता हूँ, सेम उसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज के ऊपर। होता क्या है, देखें, एक आप सीनियर पोजीशन में है तो आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एचआर हर एक की सुनता है, हम डील करते हैं लोगों को, तो देर आर पीपल जो इस पोजीशन में नहीं होते कि अपना डिसिप्लिन बना सके। 8 घंटे का तो इशू ही नहीं, हमारे पास स्टिल बेताशा लोग आते हैं जहाँ जहाँ 12 घंटे नॉर्म हो गया है काम करने का। ठीक है, 12 घंटे नॉर्म हो गया है, खास तौर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसिक चीजें अभी तक नहीं है, हम एक तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो बहुत बात की बात है। तो बताइए, जो मैं जो वही क्वेश्चन मेरा होगा, फरकली साहब ने बड़ी अच्छी तरह उसको किया कि आप मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज इसमें, और प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मगर उसके अलावा भी कुछ हम कर सकते हैं। सेइंग नो चीजें होती हैं, आप इसको अगर अपने अल्फाज में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने भी इस पे लाइट शेड की, और फरकीत साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है, जब हम बाउंड्री सेट करने की बात करते हैं, तो ये वही चीज़ है कि आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपने कामों को, और बिल्कुल टेक्नोलॉजी से हम टेक्नोलॉजी की हेल्प भी लेते हैं। जो लोग हमारे पास हैं, हमारी टीम, अगर हम उनकी बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो भी उससे भी हमें हेल्प मिलती है। बट ये जो बाउंड्री सेट करने वाली बात है, इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि वी लर्न टू से नो एज वेल। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे मैं अगर एज अ वर्किंग मदर हूँ, तो बहुत मैं हर जगह पे नहीं मौजूद हो सकती। इफ आई हैव किड और उनका स्कूल है और चीजें हैं, तो ठीक है, मैं पीटीएम में तो जा सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें खुद फिजिकली होके अटेंड कर सकती हूँ। बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मुझे नो भी कहना आना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो चीज मेरे साथ घर पे हो।
हो सकता है बहुत सारे ऐसे इवेंट हों जहाँ मेरी फैमिली डिमांड कर रही हो कि मुझे जाना चाहिए और मुझे ऐसे लग रहा है कि जी मैं नहीं जाना चाह रही, मैं आपके 2 सवालों को मिक्स ही कर रही हूँ कि जहाँ पे मेरी सेल्फ केयर भी आ रही है कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ और हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो नो कहना भी आना चाहिए, चाहे वो कहीं पे हमारा कुछ ऑफिस में अगर कोई ऐसी चीज़ है और हमें लगता है कि नहीं यहाँ नो करना है तो वहाँ पे, और अगर हमें ऐसी चीज़ कोई फैमिली में लगती है तो हमें वहाँ भी इसको करना चाहिए। अच्छा, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि हमें ना हम काम और जो है वो क्या कहते हैं जिम्मेदारियों में ज़्यादा इंगेज रहते हैं। ये जो सेल्फ केयर है इसमें सबसे पहले ऑन टॉप हमारी प्रॉपर स्लीप है। अगर हम अपनी स्लीप बेटर कर लें तो हमारे हम जो है वो बेटर हेल्दी अच्छा फील करेंगे। और अगर हम अपने दिन को जो है वो 8-8-8 के रूल में ब्रेक कर लें तो हम बेटर अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, हमने प्रायोरिटीज़ की भी बात की, हम सेल्फ केयर की भी बात कर रहे हैं। हम अपनी जो भी, चाहे वो डेली रूटीन है या हमारे ओवरऑल साल के जैसे मैनुअल टारगेट लेकर चलते हैं, अगर हम ओवरऑल ईयर का स्केड्यूल बनाएं तो उस ईयर के स्केड्यूल के अंदर हमारे वो टाइम स्लॉट जरूर होने चाहिए जो हमें रिलैक्स करते हैं। अच्छा, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा नहीं सबके लिए एक ही रूल होगा। तो ऐसी हेल्दी हैबिट्स आपकी होनी चाहिए जो आपको प्लेजर देती हैं। हो सकता है किसी के लिए वो हेल्दी हैबिट प्लांटिंग हो, कि कोई प्लांटेशन करके जो है वो अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है, स्ट्रेस फ्री फील करता है, वो फील करता है वो अपने लिए कुछ कर रहा है या कर रही हैं। कोई कुकिंग से खुश होता है, कोई क्रिकेट खेल के खुश होता है, कोई जिम जाके खुश हो रहा है, हम फीमेल पार्लर जाके भी खुश हो जाती हैं। सो हाउ आई प्रायोरिटाइज, साल के अंदर एक हमें ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें हम अपनी जो रूटीन है उससे दूर चले जाएँ। पहले होता था ना, डॉक्टर कहते थे कोई बहुत बीमार रह रहा होता था तो कहते थे इसकी आबो-हवा चेंज करो। तो मैंने इसको रियली एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि जब हम ये ब्रेक लेते हैं, चाहे वो 5 डेज़ का ब्रेक होगा, जिसमें हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हों, मतलब वो जो नॉर्मल रूटीन है उस रूटीन से मतलब रियल टर्म में ब्रेक हो। और जब हम वापस आते हैं दोबारा से अपने काम पे और उस रूटीन में आते हैं तो आई पर्सनली एक्सपीरियंस कि हमारी बैटरीज रिचार्ज हो जाती हैं, हमारी जो है ना हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी ये जो सेल्फ केयर है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सेल्फ केयर में आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, इन तीनों को जो है ना आपने देखना होता है और उसके लिहाज से सेल्फ केयर करनी होती है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें, फिर मेडिटेशन आ जाती है, माइंडफुलनेस आ जाता है, आपका ट्रैवल आ जाता है, हैबिट्स फॉलो करना आ जाता है। अच्छा, और एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं, अगर हम अपनी पसंद की फील्ड चूज कर लें ना तो शायद हम इतनी सारी हमें बात भी ना करनी पड़े। अगर मुझे अपने काम में ही मजा आ रहा है ना, अगर वो मेरा पैशन है तो वो मुझे एग्जॉस्ट नहीं करेगा। मैं चाहे कितना भी करती रहूं, वो मुझे मजीद एनर्जाइज ही करता चला जाएगा। तो जब मेरे पास ये जेन जी यंग बच्चे कुछ एडवाइस लेने आते हैं या स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि जो प्रोफेशन है ना वो बड़ा वाइजली चूज करें, तो वही आपको ना फेडअप नहीं करेगा। अच्छा चलें, अब अगर आ गए आप किसी ऐसी फील्ड में बहुत आपको मजा नहीं आ रहा लेकिन डेफिनेटली काम तो करना है, तो फिर आप अपनी वो वाली चीज जो मिसिंग है, वो जो आपकी वो जो पर्सनल वाली लाइफ है, उसको वहां से अचीव कर लेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इन दो टॉपिक्स को लेके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं चीज़ों को लेके। बड़ा एक इम्पोर्टेंट आप दोनों ने इस चीज़ को किया और बड़ा आसान नहीं है, इस चीज में कोई शक नहीं है इस चीज का कि ये आसान काम नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चंस भी आना शुरू होंगे और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस करें, और खासतौर पे मैं वो भी देता हूँ कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन आती कहाँ पे है, एक्सपेक्टेशंस में, हैबिट्स में, कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो है वो बैलेंस खराब होता है। तो आप में से किसी का क्वेश्चन तो जरूर कीजिएगा। फर्क अली साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अभी आई होप के क्वेश्चंस भी आए, चीजें हैं रूटीन में, लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं, आते रहते हैं।
जी, स्ट्रेस में आ जाते हैं और एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी चीज़ें चल रही हैं, हम डिसिप्लिन नहीं ला पाते। हम बातें करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा होगा, 15 मिनट बाद भूल जाएंगे, इस चीज़ें आएंगी, फिर उसी रूटीन में चले जाएंगे। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, बीइंग अ सीनियर प्रोफेशनल, हम बता सकते हैं अपने ऑडियंस को, खासतौर पे यंग प्रोफेशनल्स को, इवन सब हर हर तरह के प्रोफेशनल्स को, जो सफर कर रहे हैं इस वजह से, इसलिए कि सफर तो कर रहे हैं लोग, सफर कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं, वो उनको लगता है और या डर है जहन में बैठा हुआ। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आजकल के यंग उसको, कि वो पहले से इस चीज को प्लान कर रहे हैं कि जी ठीक है, हमें पता है हमें कितना चाहिए, हम एक आगे बढ़ने की धुन में, इसलिए कि ये डर होता था, मैं खुद इस चीज को जानता हूँ, मेरे कोलीग्स थे, खुद भी मैंने इस चीज को फेस किया है। ये डर होता था, जैसे अभी उस्मा ने बात की वेकेशन साल की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था लाइफ में। साल में वेकेशन, ये कुछ पीरियड के बाद वेकेशन इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप काम संभालते हैं इस हिसाब से कि जब आपको रिप्लेस कोई करेगा तो चीजें सेट होनी चाहिए। जब आप वेकेशन पे नहीं जाते ना, तो आपका काम कभी ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो जो दोबारा चले उस पेन बात पे आता हूँ, क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम गाइड कर सके लोगों को, कि किस तरह चीजों को प्रायोरिटाइज करें, किस तरह चीजों को अपना कैलेंडर बनाएं, कैसे जो है वो टॉप चीजों को, और कैसे अपने आउटकम्स को बेहतर करें। सर अब फरक अली साहब, सर आपसे। जी सर, थैंक यू। राइट, सो देखिए, मैं डिवाइड करूंगा 2 से 3 हिस्सों में, ठीक है। सर। सो एक ऑफ कोर्स बात है विच इज थोड़ी सी मैक्रो लेवल, विच इज अगर ब्रॉडर पिक्चर से देखें तो वो है which is your mental state. तो एक तो वो है। Secondly, of course, in terms of prioritizing your day, किस तरह से आपने करना है, वो सेकंड पार्ट आ गया। और तीसरा जो है वो ये कि ऑफ कोर्स देयर सर्टेन टेक्निक्स भी ना, प्योरली जो टेक्निक्स आपको डॉक्टर्स भी बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, सो दोनों तीनों एरियाज हैं, इस पे काम किया जा सकता है। um, मैं शुरू करूंगा ऑफ कोर्स फ्रॉम द मैक्रो साइड, जरा ब्रॉडर पिक्चर से, विच इज कि आप जरा पिक्चर सोच, एग्जिस्टेंस पे ना अपने, सर कहते हैं ना, माइंडफुलनेस पे जरा ख्याल करते हुए सोचें, दैट द पोजीशन दैट यू हैव, राइट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ग्रेटिट्यूड लेके आए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जरा शुरू में, तो जरा आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि बहुत से लोग जो आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस काम में हैं, एसेंशियली पीपल एस्पायर फॉर दैट, राइट। सो उससे ज़्यादा थोड़ी सा आपको तशक्कुर आता है ना जहन में, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, मसले मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में अगर ना हो तो इवेंचुअली ज़िंदगी में फिर मज़ा ही नहीं है। मुश्किलात नहीं होगी तो फिर मज़ा क्या आएगा, इवेंचुअली तो आसान सी ज़िंदगी सिंपल रहेगी। सो सर ग्रेटिट्यूड आएगा, इवेंचुअली अंडरस्टैंड, तो वो मेरे ख्याल सबसे अहम तो चीज़ है विच चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। जिसमें आप कहते हैं ना कि अपने से ऊपर आगे देखने के बजाय ये भी नजर दौड़ाएं आप कितनों से आगे आ चुके हैं, कितने लोग और मुश्किल हालात सब कुछ में हो सकते हैं। सो वो तो ओवरऑल है, दैट रियली सॉर्ट ऑफ सेट्स योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो जाहिर है थोड़ा सा मुझे पढ़ने का मौका मिला। So essentially, your thought sort of balances your physical state also, right? And essentially, your brain does whatever it hears, right, from you. अगर आप जनरली भी मुझे कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, and things are good, और या ये कि जैसे हम आजकल के नए ज़माने में रिफर्मेशंस एफर्मेशंस कहना शुरू हो गए हैं, सो ये बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स बुनियादी तौर पे तशक्कुर है जो आपके पास होना चाहिए। तो जिस भी स्टेट में, आई नो मुश्किल हालात बहुत बहुत मुश्किल होते हैं, बट कोशिश करें इससे आपका पर्सपेक्टिव और द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ योर ब्रेन एंड बॉडी वुड सेटल डाउन, राइट, कि उसे समझ आ जाएगी कि कोई फाइट फ्लाइट के बहुत खतरनाक नहीं। अगर फाइट रिस्पॉन्स देना भी है तो एसेंशियली जान नहीं जा रही किसी की, या खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन इज जस्ट अ स्ट्रेस विच इज अ मोमेंटरी स्ट्रेस। सो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर पिक्चर, टू सेट योर सेल्फ इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, इन कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस। सेकेंड है इसके बाद ऑफ कोर्स ब्रेकिंग डाउन योर डेज, योर वीक्स, मंथ्स, जैसे भी आप करना चाहें। ऑफ कोर्स नोबडी इज अ परफेक्ट पर्सन, हम सब ने भी मारे खाई मुश्किल हालात से गुजरे, कुछ ना कुछ हुआ, सीखा, हमने 10 दफा कोशिश की, प्रायोरिटाइज करें, नहीं हुआ, 11वीं दफा शायद हो गया थोड़ा बहुत, तो लाइफ इज अ स्ट्रगल। सो कोशिश करें वट एवर योर प्रोडक्टिव टाइम इज। एंड कुछ लोग सुबह के शौकीन होते हैं, कुछ शाम के, कुछ रात के। जनरली हम
फंक्शन भी है सब। फाइनेंस है ना, हम जल्दी देखते हैं, आप खुद अगर हम फाइनेंस से हैं, तो essentially हम देखते हैं लेट बैठते हैं हमारे पास भी ऑफिस में। सो उनका एक फर्क तरीका कार से चलते हैं, HR फर्क है, मार्केटिंग फर्क है, हर ऑपरेशंस फर्क है। सो प्रायोरिटाइज योर डे एंड देन पर्सनालिटी ऑफ कोर्स, जैसे भी आपको बेहतर लगता है, बट कोशिश करें अपने प्रोडक्टिव टाइम को कर लें। और आप जाहिर है लगातार 8 10 12 घंटे काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ब्रेक्स चाहिए होती हैं, किसी को 2 घंटे करके चाहिए, किसी को 15 मिनट चाहिए, जो भी है। बट देख लें जो अच्छा टाइम है, प्रायोरिटाइज कर लें। और जो ओल्ड स्कूल तरीका, राइट, हाँ, वो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बनाते थे, आई थिंक आई फाउंड इट टू बी, कोई 20 साल पहले किसी ने बताई थी, तो वो सबसे अच्छी रही है। कि आप समझ लें लिखी हुई चीज़ें, पेन पेन पेपर का इस्तेमाल करो। रिमाइंडर्स टेक्नोलॉजी का मैं भी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, बट ऑफ कोर्स वो भी अच्छा तो बना लें। आपका ब्रेन ही है, कोई परफेक्ट कंप्यूटर तो है नहीं जिसमें हर चीज़ प्रायोरिटी, अलार्म सही टाइम पे बज रहे होंगे, यूल मिस आप थिंग्स होंगी, आगे पीछे होगा। तो कागज़ का इस्तेमाल करें, लिख लें चीज़ें क्या हैं, उस तरह भी कर लें, टू डू ऑनलाइन भी कर लें, जैसे करना चाहें, बट प्रायोरिटाइज कर लें। और तीसरा जिस तरह जिक्र किया कि अगेन परफेक्ट नहीं है, क्या एक्सरसाइज करना चाहते हैं, गेम को पसंद है, वैसे ही रिलैक्स करना चाहते हैं, सोना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नैप लेना चाहते हैं, चाय पसंद है, जो पसंद है आपको, तो जिसका उसमें भी जिक्र कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहन सुकून में आएगा, आप खुद सुकून में आएंगे तो दुनिया को भी सुकून दे सकेंगे, और दुनिया को सुकून देंगे तो आप कुछ काम भी कर सकेंगे। सो ये 3 अप्रोचेज़ हैं मेरी, एक ग्रैटिट्यूड, एंड सेकंडली प्रायोरिटाइज़, लिख के समझ लें क्या इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी जितना कर सकें। एंड तीसरा ये कि अगर पॉसिबल हो तो रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं, जो भी जिस चीज़ से भी आपको जो सुकून देती हो, तो वो कर लीजिए। और मेरा ख्याल है कि जनरली शुड हेल्प ऑल सॉर्ट ऑफ जनरेशंस एज यू एज। जिस तरह आप एज में हम हैं, तो एसेंशली अब ज़्यादा एहसास होता है, इवेंचुअली अर्लियर एज आपको एहसास इतना नहीं होता। दैट कंटेंटमेंट, सुकून इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मे बी एड्रीनलिन का जो जोश होता है आपको कि आज मैंने नया काम, नया एडवेंचर। सो वो ज़ाहिर है हर जनरेशन, हर एज की अपनी एक वो है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि एड्रेनलिन ज़्यादा चाहिए किसी को, या सुकून ज़्यादा चाहिए, या एडवेंचर ज़्यादा चाहिए, रिस्क चाहिए। हर किसी का अपना अपना एक लाइफ का है, तो जिसको जो चीज़ सही लगती है, मैनेज दैट। बट प्रायोरिटी नंबर 1 वो मैं कहूँगा, एक दफ़ा सुकून समझ लें कि शुक्र अल्लाह का, ठीक है, एंड चीज़ें, थिंग्स वुड वर्क आउट वेल। थैंक यू सो मच। वकील, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। एग्जैक्टली कहते हैं ना, जो बड़ा मशहूर था कि जी वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने का टाइम जरूर निकालें, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। उस्मा, आपकी तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली निचोड़ है हमारे आज के टॉपिक का, तो इसको जरूर मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स, जैसे फकीर साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि क्या ऐसी कोई टेक्निक्स हैं, हम गाइड करें, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह गाइड किया, कि जिसको यूज करके लोग इस पे ध्यान दें। कहना, बात सुनना डिफरेंट होता है, समझ आती है लोगों को ये करना है। जैसे उन्होंने कहा कि लिख के चीजों को करें, आपको ब्रेक्स लें, हर एक का ब्रेक का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक की जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर एक का काम का स्टाइल डिफरेंट होता है। जी। मगर ब्रेक्स लेना जरूरी है, और ये बात है, अपने आप को आप रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे होता है कि वो लकड़हारा जो है, वो अगर कुल्हाड़ी को तेज करने के ब्रेक नहीं लेगा तो इवेंचुअली वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर उसके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ऐसी कोई टेक्निक्स हैं आपके नज़र में, कोई जो जिनको नोट करके हमारी ऑडियंस जो है वो इसको इस हार्मोनाइज, जो फाइंडिंग हार्मनी जो है उसके उस तरफ जा सके? बिल्कुल। इसकी कुछ टेक्निक्स बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने जो है ना गोल सेट करने, एनुअल हमारा गोल टारगेट्स होने चाहिए। उसमें हमारे कुछ प्रोफेशनल गोल्स होंगे, कुछ हमारे पर्सनल गोल्स होंगे, कुछ फैमिली के गोल्स होंगे। अच्छा, जब आपने वो गोल्स बना लिए, फिर आपने उनको ब्रेक कर दिया मंथ वाइज, फिर क्वार्टर वाइज, और फिर आपके डेली अकॉर्डिंग टू दैट गोल, फिर आप उनकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। लेट सपोज कोई गोल मेरा ऐसा है, मेरा गोल है कि मुझे अपना वेट कम करना है इस साल में 10 kg, या मुझे अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है। फिर उसके लिए मुझे जो थोड़ी सी रिसर्च वर्क करके, और मैं फिर उसके पॉइंटर्स निकालूं, एक्शनेबल पॉइंट्स, कि जी ये चीज़ मैं करूँगी तो ये चीज़ मेरी अचीव हो जाएगी। अच्छा, जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, तो इट गिव्स यू इट गिव्स योर माइंड अ रिलैक्सेशन। आपको एक अचीवमेंट की, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। ये वो है, ये प्रोएक्टिव आपकी अप्रोच है। अच्छा,
इसी में जो मैंने पहले अपने इससे पहले के डिस्कशन में कहा कि जैसे आपका ट्रेवल है, तो आई पर्सनली एनुअली प्लान माय ट्रेवल, और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। जो चीज मैंने खुद की तो वो बिल्कुल आपकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई। फिर आ जाते हैं डे टू डे, हमने सब कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम आ गया, कोई प्रेशर्ड सिचुएशन आ गई कि जी मेरा सब कुछ प्लान चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी गाड़ी में कोई मसला आ गया, मुझे घर भी जाना है, मुझे ऑफिस आने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कम्यूट भी मैनेज करना है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऑफिस में भी ऐसे काम आ जाते हैं, एकदम सर्टेन प्रेशर होता है, तो यू फील एकदम से आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। तो अभी फरखलीद साहब ने भी जैसे कहा था कि उसके लिए ब्रीदिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप थोड़ी देर, मतलब ब्रेक ये नहीं है कि कोई लंबे ही ब्रेक्स हो, एनुअल ट्रेवल पे जाया जाए, क्विक शॉर्ट ब्रेक्स भी बहुत अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट माइंड को रिलैक्स करती हैं। उसमें वन नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है कि आपने राइट बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, इस तरह की बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक है। फिर देन आप थोड़ी देर के लिए, अगर मैं सीट पे बैठी हूँ, कंटिन्यूअसली कोई काम कर रही हूँ, मेरा माइंड कहीं स्टक हो गया, मुझे शदीद स्ट्रेस हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप उठ के एक राउंड लगा कर आ जाएं 2 मिनट के लिए, पानी पी लें, 1 मिनट का ब्रेक लें, ब्रेक ले लें, नहीं कोई चीज समझ में आ रही, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, फिर अक्सर जो हमें स्ट्रेस होता है वो हमारी डेडलाइंस हम नहीं मीट कर पाते, वो स्ट्रेस क्रिएट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो अगर हम अपने जो 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 वर्क है उसको प्रायोरिटाइज, वो जो 4 क्वाड्रेंट, ऑल्दो इट्स अ ओल्ड टेक्निक, लेकिन मैं आज भी यूज करती हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट क्या है, वो मेरे पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। या जो ब्रेन ट्रेसी की टेक्निक है, ईट द बिगर फ्रॉग फर्स्ट, तो जो सबसे मुश्किल टास्क है वो सबसे पहले कर ले, जिसने मेरे जहन का 70% एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो सबसे पहले वो 75% मेरा एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपका जो 80-20 रूल है, लाइक आपकी जो 80% आपकी जो अचीवमेंट है वो 20% एफर्ट से आ रही है, और कुछ काम ऐसे होते हैं 80% एनर्जी ले रहे होते हैं और 20% आउटकम आ रहा होता है, तो लेस एनर्जी लगा के मैक्सिमम आउटपुट लेना। फिर ये टॉपिक हमने बार बार किया कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए ना, तो इट्स बेटर कि आप अपने जो टास्क हैं उसको किस तरह से बेटर डेलीगेट करते हैं। देन वन मोर थिंग, हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बहुत सारी बातें जो कर रही हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिकली कर रही हूँ, मैं वो वाली चीजें शेयर कर रही हूँ। स्पेशली इन माई केस, लाइक आई टेक हेल्प विद माई फैमिली, चाहे वो कुकिंग में हो कि जी मुझे कुछ चीजें बना के फ्रोजन रखनी है, मुझे हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है, तो प्रिजर्व फूड नहीं लाना, तो मुझे होममेड कोई ऐसी चीजें चाहिए जो मैं फ्रोजन रख लूं, तो आई सीक हेल्प विद माय फैमिली, विद माय एनी सिस्टर जो जॉब नहीं कर रही, शी इज अ होम मेकर, तो आई आस्क हेल्प। और इसी तरह आप टीम में, आपका जो फ्रेंड नेटवर्क है, आपका जो ऑफिस कोलीग्स का सर्कल है, एंड देन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड, आप उनसे हेल्प ले लें। तो जब आपके टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो फिर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मैनेज हो जाता है। और सबसे ऑन टॉप, जैसे अभी मुझे आज के टाइम पे लगता है, कुछ हमारे स्ट्रेसेस, ऑल्दो हम बात तो वर्क लाइफ बैलेंस की कर रहे हैं, कुछ हमारे स्ट्रेसेस ऐसे हैं जो हैं ही नहीं और हैं। यानी हम सोशल मीडिया पे हैं, अब हम देख रहे हैं फलां जो है वो घूमने बाहर जा रहा है, उसने नई गाड़ी ले ली, तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस की बात ही नहीं है। तो अगर हम शुक्रगुजारी अपना लें, तो फिर स्ट्रेस ही नहीं होगा, जो है उसमें हम खुश हैं, थैंक्स करते हैं। इफ वी सी हाफ ग्लास फुल, हम देखते हैं जो हाफ ग्लास एम्प्टी है, तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक की बाउंड्री से निकल के थोड़ा सा जर्नलाइज तरफ चली गई। तो ऐसी अगर हम थोड़ा सा अपनी माइंडसेट पे काम कर लें, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आ जाएं, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, वो अननेसेसरी स्ट्रेस वाला फैक्टर तो माइनस हो जाएगा एटलीस्ट।
थैंक यू सो मच उस्मान, नहीं आपने बहुत अच्छी बात की। ऐसा ही होता है, चीजें मिलके चीजें बनती हैं, चीजों को एक चेन चलती है, एक चेन चलती है, मिलके चलाना होता है। और आजकल आज बुलेट पॉइंट कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इस पॉइंट के बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। फकीर साहब, क्रिएटिंग अ सपोर्टिंग नेटवर्क, अभी हम बात कर रहे थे एज इंडिविजुअल, अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, मगर डेफिनेटली जब ये अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो खाली आपने अपने लिए नहीं करना, आप ईज आउट करेंगे दूसरों के लिए भी, तो वो माहौल बनेगा। इसलिए कि सारे ब्रेक लेने के लिए, चीजों के लिए आपको चाहिए। और फ्रेंकली बताऊं, ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। हम जो इस एज में आके बैठे हुए, मैं मेरी दोनों आंखें कॉर्निया ग्राफ्ट हैं, मेरी बीनाई चली गई थी जवानी में। आई वाज मेरा वो पहला अच्छा। कॉर्निया ग्राफ्ट हुआ था 1995 में, और दूसरा कॉर्निया ग्राफ्ट हुआ था 2011 में। जब 2011 में मेरा ग्राफ्ट हुआ तो मेरा जो 95 वाला ग्राफ्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मेरी एक आंख में विजन नहीं थी, एक आंख में 30% विजन थी, और आई एम अ फाइनेंस पर्सन। ठीक है, और मैं एक हम्म। कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर था, मुल्क से बाहर था, और मुझे प्रेजेंटेशन तक नजर नहीं आती। मैं डॉक्टर के पास गया, और मुझे ये था कि अगर मेरा, इसलिए कि जब मेरा पहला ग्राफ्ट हुआ था तो 3 महीने लग गए थे उसको रिकवर होने में। तो मुझे ये अच्छा। था कि भाई इसका मतलब ये है कि मैं खत्म, कैरियर नौकरी खत्म। लेबनीज डॉक्टर था, डॉक्टर रियाद खदरा, अल्लाह मियां उसको खुश रखे। उसने मुझे एक काम कहा, उसने कहा, यंग मैन, यंग था मैं 2011 में, सारी बात तो पुरानी हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी जो काबिलियत है वो इस जॉब से रिलेटेड है, इससे पहले कोई कभी कुछ नहीं किया। मैंने कहा, नहीं, बहुत कुछ किया है। उसने कहा, तुम तो जवानी में 95 में तुम्हारी पहली सर्जरी हुई तो उस वक्त तो पढ़ रहे थे तुम। मैं कहा, जी सारी एजुकेशन उसके बाद, उस वक्त तो सेकंड ईयर था, सीए उसके बाद किया, सीपीए उसके बाद किया, पीएचडी उसके बाद किया, सब कुछ किया। तो कह रहे हैं उसके साथ किया ना, तो वाई एक नौकरी के पीछे तुम परेशान क्यों हो? तो एटलीस्ट चलो, नौकरी चली जाएगी, ओके, लेट्स अज्यूम ये खत्म हो जाएगी ना, तो अगले के लिए तो तैयार हो जाओ। ब्लाइंड होके तो कुछ भी नहीं होगा। हम्म। और मैंने नेक्स्ट डे जो है ना वो अपॉइंटमेंट लिया, श्रीलंका गया, सर्जरी कराई, और अल्लाह का बहुत अच्छी डॉक्टर मिल गई। 24 अक्टूबर को, सितंबर को सर्जरी हुई, 3 अक्टूबर को मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ये माशाल्लाह बता रहा माशाल्लाह। था कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। मुझे वो स्टेट जो था ना, जो वो स्टेट था जब एक आंख में 30% विजन है, एक आंख में नहीं है, जस्ट इमेजिन के काम का स्ट्रेस और वैसे स्ट्रेस क्या होता। बच्चे भी छोटे थे, चीजें थी। तो लाइफ में चीजें होती हैं, और आपको कहीं ना कहीं ना स्टेप लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं। और ये फैक्ट है कि कभी आप इतनी स्टक हो जाओ, एक क्वेश्चन भी है एक्चुअली, पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। इमरान कुरैशी साहब का क्वेश्चन है, I am feeling stuck in life. Despite being experienced for more than 15 years in industry, I am still not happy. What to do? तो थोड़ा सा इमरान से, मैंने भी आपको बताया कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जब 2011 में मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो मैं 97 में मैंने क्वालिफाई किया था, तो मैं समझे 14 साल हो गए थे मुझे पोस्ट क्वालिफिकेशन, और मैं एक बड़ी कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर था। बड़ा बड़ा मतलब मैं तकरीबन को $2 बिलियन का बिजनेस संभालता था उस वक्त। तो मैं बड़ा अनहैप्पी था, इसलिए कि मुझे नजर नहीं आता था। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? मैं अब दो प्रोफेशनल्स हमारे साथ एचआर के लोग बैठे हैं, ज्यादा ज्यादा काबिल लोग हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, इमरान साहब कहते हैं जी 15 साल हो गए, इतना स्टक हो गया इंडस्ट्री में, खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। सही है। ओके। सर। जी जी, मैं कोशिश कर सकते हैं जी। जाहिर है, रियलिटी लाइफ में होती है जी। एवरीबडी फील्स दैट वे। और अकेले नहीं है, हम सब भी इस फेज से गुजरे हुए हैं। जिसे कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस या मिड कैरियर क्राइसिस, सब गुजरते हैं इसमें से। एंड सो मेरी तो दो ही राय जी, अगेन वही वाला कि एक तो कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा इसमें। अगर जॉब है तो जाहिर है वो जॉब है, वो बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक रिस्क आ रहा है, और कोई ना कोई सिचुएशन होगी। हाँ, आप शायद उतनी स्पीड से, जिस तरह अभी उज़मा कह रही थी कि हो सकता है आप, एक गाड़ी हो आपके पास लेकिन शायद नई ना हो, और आपके साथ वाले की तेज गाड़ी बड़ी तेजी से गुजर रही है, जो आपका कैरियर को अगर सेम एनालॉजी के साथ ले लें कि आपका कैरियर तो है बट उतना तेज नहीं, उतना फुलफिलिंग नहीं है जितने आपको, जिसको आप रेफरेंस कर रहे हैं उसका हो रहा होगा। तो हर किसी की अपनी जर्नी है जी। आप लाखों करोड़ों लोग आपसे फर्क जिंदगी गुजार रहे होंगे, आप थोड़ी फर्क जिंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एस्पिरेशन ना हो, मोटिवेशन ना हो, तरक्की की राहें ना आप अबूर करके कहीं कहीं से कहीं पहुंचना ना चाह रहे हो, बिल्कुल चाहेंगे आप। बट ये जरूर याद रखें कि आप जहाँ खड़े हैं वो आप रॉक बॉटम पे नहीं खड़े, आप हवा में नहीं खड़े, आप किसी जगह खड़े हुए हैं इस वक्त। और जहाँ तक खड़े हैं वो भी किसी वजह से खड़े हुए हैं। वो बस अगेन माइंडसेट की बात है, एंड स्टक बिल्कुल होते हैं ऑलमोस्ट।
I don't have exact numbers, and maybe 50-60% of all professionals in their careers, of course, get through these chances. हर कोई 30 साल की उम्र में सीओ नहीं बन जाता, हर कोई 40 साल की उम्र में रिटायर नहीं हो जाता। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी ने अपनी जर्नी में से गुजरना है। और उसकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है जो वो खुद लिख रहा है। ठीक है, जाहिर है वो किस्मत और सबका है। आपका बेहतरीन काम है कि आप उसमें जितना इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, हम यहाँ बैठ के खुदा ना खास्ता बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम कहेंगे जी हमारी बहुत परफेक्ट लाइव्स हैं और हमने बहुत ज़बरदस्त जिंदगियां गुजारी, वहाँ बैठ के भाषण झाड़े और समझाएं। सब गुजरे हैं स्टेजेस से, हमने भी समझा है कि ये कहाँ आ गए, अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा। स्टेप बैक लेने पड़े हैं बाज़ सूरतों में। आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उससे पीछे जाना पड़ता है आपको बाज़ औक़ात। फैमिली, कैरियर, सेहत, हर तरह की चीज़ों के लिए चीज़ें मूव करती हैं, और हर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही है। बात वही है, शुक्र अदा करें, रेजिलियंस रखें और कोशिश करें आगे से आगे बढ़ने की। हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि ये समझ लें कि आपका इवेंचुअल एम है क्या। क्योंकि अगर एमलेस जिंदगी है ना, जैसा थोड़ी देर उज़मा भी कह रही थी कि साल के ऑब्जेक्टिव आपके कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो इवेंचुअली पूरी जिंदगी का भी थोड़ा सा वो देख लें कि इवेंचुअली व्हाट इज द लिमिट दैट यू लुकिंग एट। बेशक वो स्काई इज द लिमिट पे चलें, बेशक आप कहेंगे जी मुझे आई वांट टू बी द रिचेस्ट गाय, आई वांट टू बी द हैप्पीएस्ट गाय, आई वांट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड पब्लिक स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, व्हाटएवर यू वांट टू से। बट वो समझ ले वो क्या है, और जब उसके आप करीब पहुंच जाएंगे तो मतलब वो अच्छी बात है कि आप करीब पहुंच गए। बट एमलेस अगर गुजारेंगे तो आपको हमेशा ही नाशुक्री रहेगी। और थोड़ा सा एम जिंदगी में रहेगा तो आपको एहसास भी होता रहेगा कि 50%, 40% कितना दूर रह गया है। और अगर बहुत ही दूर रह गया, आप 10% पे खड़े हैं, 90% रहता, तो जाहिर है स्टेप तो लेते रहेंगे ना। चाहे छोटा स्टेप है या बड़ा स्टेप है, स्टेप लेते रहना अपने, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक मशहूर मुझे जो किताबें पढ़ने का शौक है, तो एक किताब भी की अच्छी एनालॉजी है कि और मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी कि आपके एक जंगल है, अंधेरा सा जंगल है, और ऑफ कोर्स द ऑथर इज वांटिंग टू सॉर्ट ऑफ क्रॉस द दैट पर्टिकुलर जंगल, और वो परेशान हो जाता है जाहिर है। तो ही आस्क्ड द हॉर्स इटसेल्फ कि व्हाट शुड आई डू, and the horse tells the person back, you know your next two steps, right? And the person says, of course I know my next two steps. So कहते just take them. So अगले दो स्टेप, अगले दो स्टेप, एक दो स्टेप करते रहेंगे, so eventually जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कहीं नहीं भी पहुंचेंगे तो जहाँ खड़े हैं वहां तो आप खड़े हैं ना eventually. So कोशिश, resilience and तशक्कुर, I think. थैंक यू सो मच। राना साहब, अपनी खुशियां ऐसी चीजों में ढूंढे जो लॉजिकल हो। पुरानी बात है, मेरे एक इजिप्शियन दोस्त था, और वो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था कि उसने डॉज चार्जर खरीदनी थी गाड़ी। डॉज चार्जर बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी अच्छी भागती है। उसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, V6, एक V8। इंजन साइज डिफरेंट होता है दोनों का। उसने सारे पैसे जमा करके, बोनस शोनस करके उसने V6 गाड़ी खरीदी। और उस दिन वो जितना खुश था, आपकी सोच है, मैं जिद्दा की बात बता रहा हूँ। 4 दिन बाद उसने वो गाड़ी बेच दी, और उसकी शक्ल देखने वाली थी। मैंने कहा क्या हो गया भाई? उसने कहा जी मैं मेन रोड पे जा रहा था, ड्राइव ले रहा था, स्पीड चेक कर रहा था, और एक साथ सेम कलर की डॉज चार्जर आई, और उसने मुझे देखा, और वो शुभ निकल गई गाड़ी। क्यों? इसलिए कि वो V8 थी, मेरी V6 थी। तो उसको V6 लेके भी खुशी नहीं हुई, तो उसका मतलब ये था कि वो गलत जगह खुशी ढूंढने जा रहा था। खुशियां ढूंढने से मिलती हैं। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखे, सेलिब्रेट करना सीखे, लिव इन नाउ। आज जो अच्छा है उस पर थोड़ा सा जरूर खुश हो लें, बड़ा स्कोप है। उस्मा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगले पॉइंट पे चलें। मैं इस पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको गाइड किया, जैसे ये कह रहे हैं कि स्टक है ना, तो मुझे ऐसे लगता है इमरान साहब थोड़ा सा ना इसको एनालाइज करें कि कहाँ स्टक है, कौन से, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। हो सकता है ये रियल सेंस में आप कहीं करियर में फंस गए हैं, फर्दर ग्रोथ नहीं नजर आ रही, तो फाइंड आउट वेज, एनालाइज करें कि क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, कि क्या मुझे स्किल सेट शार्पन द सॉ करना है, मुझे कोई अपनी स्किल बढ़ानी है, या जो है वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट की मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये प्रोफेशन की बात हो रही है और मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या उसके रीजंस हैं, उनसे बैठ के डिस्कशन हो सकता है कि हम, अगर हमारे मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, हम उनसे बात कर लें। अगर ये हम कॉर्पोरेट लाइफ में स्टक की बात कर रहे हैं तो ये एक दो रीजन हो सकते हैं। और अगर कोई वो पर्सनल लाइफ की कोई चीज है, उस पर बड़ी अच्छी लाइट हमारे दोनों रिस्पेक्टेबल स्पीकर्स ने ऐड की कि वो मे बी के हम वो अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजों पर होंगे, लेकिन एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, तो आप वो एनालाइज करें वो रीजंस क्या हैं,
और फिर उसमें किसी से हेल्प लें, या मे बी आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें तो आप खुद ही किसी उस पर पहुंच जाएं, किसी सोल्यूशन की तरफ। जी मेरी तरफ से यही था। सो मच। एक क्वेश्चन है और तैयब अजमल साहब का, आई एम अ ट्रेनिंग मैनेजर, माय बॉस इज पोस्टपोनिंग अवर एनुअल ट्रिप फॉर लास्ट फ्रॉम लास्ट 3 years, यू नो अबाउट बर्नआउट सिचुएशन, हाउ टू परसुएड। आज मैं इसका जवाब बिल्कुल इसलिए नहीं दूंगा कि मैं कैसे के उससे बिलोंग करता हूँ जो हमेशा बजट रोका करते थे, ठीक है? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वरना 8-9 साल पहले तक जो था मैं फाइनेंस का बंदा था, जो हम पे, हालांकि हम भी लोग होते हैं बट हम पे स्टैंप होती थी बजट रोकते हैं, तो दो जो हमारे एचआर आपसे चले स्टार्ट करते हैं, इनके ट्रेनिंग मैनेजर 3 साल से एनुअल ट्रिप रोक कर बैठे हैं, क्या करेंगे? अच्छा, अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे मजा भी आ रहा है बात करने में, कि हम बार बार घूम फिर के उन्हीं चीजों पे आ रहे हैं। अगर वो ट्रेनिंग बजट रोक के बैठे हैं, डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीजन होगा। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, कंपनी अलाउ नहीं कर रही या कंपनी अलाउ कर रही है, वो ट्रेनिंग मैनेजर खुद नहीं करना चाह रहे। अब उस पे अगर हम बॉदर हो रहे हैं एक अननेसेसरी कि जी हमारा रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हम अपने सेल्फ लेवल के ऊपर कोई ऐसी चीज कर लें कि अच्छा बर्नआउट है, तो हम कैसे ब्रेक ले सकते हैं, यानी कि जो मेरे कंट्रोल की चीज है मैं वो कर लूं। मैं उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए अलाउ कर दें, उससे वो आप जो है वो अगर अपसेट हो रहे हैं तो आई थिंक हमें उस तरफ नहीं वो करना चाहिए। मैं इस तरह देख रही हूँ इस चीज को। सब आपकी एडवाइस बड़ा मायने रखती है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल बेहतरीन एडवाइस है जी। फाइंड ऑल्टरनेट्स। बिल्कुल सही कह रही है, जाहिर है कोई रीजन होगा। सिर्फ तंग करने के लिए, सेडिज्म के लिए तो नहीं रोक रहे होंगे। एग्जैक्टली। और अगर आपने मजीद आप चाहते हैं, आपको लगता है, जाहिर बात है आप भी ट्रेनिंग मैनेजर हैं, आपको लगता है कि आप इस बात से अब नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा, इतना कंप्लीट प्लान बना के लेके जाएं और उसमें ये जरूर लेके जाएं, ये इस चीज को जरूर मद्देनजर रख के लेके जाएं। आप इसमें उनको प्रूफ करें कि जो भी ट्रेनिंग आपके जो एनुअल ट्रिप के दिन होंगे, 3 4 5 जो भी दिन होंगे, उसमें काम का क्या होगा, काम का को असर नहीं पड़ेगा। खर्च नहीं होगा, जी जी। हाँ, काम काम अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा प्लान लेके जाएं, हो सकता है 50% से ज्यादा मसला हल हो जाता है। मैंने ये देखा है कि अगर आप ये चीज प्रूव कर दें, पहली बात आपका प्लान बना होना चाहिए, आप प्लानिंग पहले उसके बाद स्टार्ट मत करें, आप कंप्लीट प्लान सामने रखें। अप्रूवल्स नहीं, उसके अंदर ऐसी कोई कमिटमेंट्स, कोई बुकिंग्स नहीं होनी चाहिए, और प्लान सामने होना चाहिए, और मेक श्योर करें कि वो प्लान का ये हिस्सा हो कि जी 4 दिन या 5 दिन जो हम एनुअल ट्रिप पे जा रहे हैं, ये कोई भी चीज हमारे बिजनेस के इफेक्ट नहीं करेगी। आई होप कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से केस परसुएट कर सकते हैं। लास्ट, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, हाउ डज एज इम्पैक्ट हार्मनी इन लाइफ, आई मीन एज ग्रुप। अफरासियाब खलील साहब कहते हैं जी, हाउ डज एज इम्पैक्ट हार्मनी इन लाइफ, एज ग्रुप। आप प्लीज। आई थिंक सवाल से लग रहा है कि इट्स मोर लाइक हार्मनी बिटवीन वेरियस एज ग्रुप्स। तो देखें, फर्क तो है, जाहिर है, एज ग्रुप्स के तरीकेकार फ़र्क हैं काम करने के, अप्रोच करने के, टू इश्यूज, टू मैनेजमेंट कंसर्न्स, टू चैलेंजेस, मार्केटिंग, हर तरह के। तो चैलेंज तो होता है ऑफ कोर्स। कुछ जनरेशन ऑफ कोर्स हमारी थोड़ी वर्क फोकस ज़्यादा थी, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ का कॉन्सेप्ट था। कुछ जनरेशन ऑफ कोर्स आ गई जिन्होंने स्विचेस करने थे, दे वांटेड टू ग्रो फास्ट। कुछ फाइनेंशियल साइड पे ज़्यादा फोकस थी, उससे अगली जनरेशन, अभी जनरेशन ऑफ कोर्स वेलबींग पे आ गई। सो ऑफ कोर्स हर चीज़ की प्रायोरिटी फ़र्क है। आई थिंक एम्पैथी इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कोई गलत या सही नहीं है, हर किसी की अप्रोच इन लाइफ है, एंड एम्पैथी दिखानी पड़ती है। किसी भी मैनेजर लीडर के लिए सबसे बड़ा काम मैनेजिंग टीम ही है, क्योंकि देखें फाइनेंसिस नंबर्स तो जाहिर है इमोशनल नहीं होते, 2+2 4 ही होता है। दे रिकंसाइल, दे मैनेज बिजनेस, वो कोई ऐसे नहीं करते। जनरली पीपल आर ऑफ कोर्स आर अनप्रडिक्टेबल, द बिहेवियर्स अनप्रडिक्टेबल, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होता है बहुत कुछ। तो एम्पैथी मेरे नज़दीक है कि मंथली रिस्पेक्ट उनको दें, तो अब समझना पड़ेगा। हम खुद फेस कर रहे हैं जी रोज़ सेम चीज़ को। कॉफ़ी फ्लेवर और कप और सीटिंग और लाइटिंग अरेंजमेंट्स पे इशू खड़े होते हैं, जबकि हम ऐसी बातों में बात भी नहीं कर सकते थे एक ज़माने में। सो बिल्कुल फ़र्क है। आपको छोटी सी एनालॉजी देते हैं। आई आस्क्ड समवन, हम बैठे थे एक मीटिंग में, आई सेड सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एसेंशियली वी नीड टू सॉर्ट ऑफ हैव अ इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? और वो लेके आए सो दैट लेस क्लिक्स, लेस एप्स, और ये बहुत खिचड़ी पक गई है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई सेड।
एंड मेरा ख्याल है कि इस तरह करके चलना चाहिए. So somebody from the new generation actually just stood up and said, fair enough, but जो भी किया वो आपने किया ना, हमें आके आप क्यों डाल रहे हैं सारा कुछ. Essentially it's you people जो लास्ट भी 2-3 डेकेड से आपने सब कुछ किया है. सो आप पे हमने आके चैलेंज डाल दिया, आप कह रहे हैं अगले 3 महीने में कोई सोल्यूशन लेके आओ. आपने जो 20 साल में खराब किया लिटरली वो बेटे में सर 20 साल में जो आपने खराब किया आपकी जनरेशन है, वो 3 महीने में हमसे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे हम ठीक कर दें. I said, fair enough, got it, but you have to give respect and empathy and work around that. इनके बाद अगली जनरेशन ने आना, वो फर्क होंगी, तो वो हमें साइलेंट जनरेशन कहेंगे, वो कहेंगे किस तरह की बातें करते हैं. सो यू नो एम्पैथी जितनी दिखाएं उतना अच्छा है, एंड लुक एट द पॉजिटिव. उसमें आपसे मैं लास्ट वो है जो मैं पहले बात कर रहा था, हाउ इम्पोर्टेंट इट्स बिल्डिंग अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ कॉलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली टू अचीव वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड मैंने तो इसके बेनिफिट, इसके फ्रूट लिए हैं. तो एज फार एज योर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली इज कंसर्न, मैंने पहले भी बताया कि आई यूज टू टेक सपोर्ट विद माई सिस्टर्स, कि मुझे वो थोड़ी सी कुछ फ्रोजन चीज़ों में हेल्प करें. देन मैं अपने बेटे को मदर के घर ड्रॉप कर कर आती हूँ, उनको ट्यूशन स्कूल से पिक करना, चाहे सुबह मैंने खुद देख ली कुछ चीज़ें, तो आई आस्क फॉर सपोर्ट, मतलब मैं उसमें शाय नहीं होती. इसी तरीके से हम टीम को सपोर्ट करें जब हम प्रोफेशनल ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, काम डेलीगेट करें जब हम उनको हमारी ज़रूरत होती है और हम उनकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं. तो जब हमारा टाइम आता है तो मैंने फील किया है फिर वो हमारी सपोर्ट के लिए भी होते हैं. और तीसरा आपका जो ये फ्रेंड सर्कल आ जाता है, उसमें बाज़ औक़ात आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है. कभी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं और चूँकि आप खुद उस सिचुएशन में होते हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे होते, तो बाज़ औक़ात आप किसी से डिस्कस कर लेते हैं, किसी से गाइडेंस ले लेते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है. तो आई टेक इट एज़ अ वेरी पॉज़िटिव थिंग कि हम सारी चीज़ें अपने शोल्डर पे ले लें कि नहीं सब हम ही कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है. और इसी तरह की बात फिर खलीद साहब ने भी की थी कि जो है क्या कहते हैं, एक ही होता है, और वो जो एक पुरानी मिसाल भी 1 और 1 11 होते, तो होते वो 2 हैं लेकिन पावर 11 वाली हो जाती है उनकी. तो सपोर्ट नेटवर्क बिल्कुल हमें बनाना चाहिए और ये हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है. हमारे जब वर्क लाइफ अच्छे से बैलेंस होता है तो हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो पाती और हम बहुत बेहतर फोकस कर लेते हैं अपने आप पे. थैंक यू सो मच. और आज का टाइम, इमरान साहब ने दोबारा क्वेश्चन किया, मैं इमरान साहब को मुख्तसर में जवाब देता हूँ. इमरान साहब जिन्होंने कहा था कि मैं स्टक हूँ, उन्होंने एक्चुअली स्टेप बैक किया था. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के एक नए सिरे से जॉब स्टार्ट की थी जो थोड़ी लोअर लेवल पे थी. इमरान साहब याद रखिएगा, पहली बात यह कि जिंदगी में गलतियां भी हो जाती हैं, और सेकेंडली आप उस एम को, सोच को याद रखिएगा जिस वजह से आपने स्टेप बैक किया था, मे बी वो इंपॉर्टेंट हो. जब आप स्टेप बैक होते हैं, अंडर कैपेसिटी या अंडर पेमेंट होते हैं, तो आप वो भूल जाते हैं किस वजह से किया था, मे बी उस वक्त हालात बड़े खराब हो. अच्छे तो, और सेकेंडली लाइफ है, गलतियां होती हैं, कैरियर मिस्टेक्स इज वेरी वेरी नॉर्मल. तो याद रखें, प्लान करें प्रॉपरली. लाइफ ये कैरियर एक प्लानिंग है, उसमें इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट अपने टाइम की, लाजमी नहीं, मेंटोर बनाएं, इन्वेस्ट करें, प्रोफेशनल से हेल्प लें. गाइडेंस के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, ASK मौजूद है, अपने बल पे मौजूद है हमारे. हम लोग आपको राय भी लोगों की दे सकते हैं विदाउट एनी चार्ज. आप, गलतियां हो जाती हैं, कैरियर मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं. पार्टियां नहीं, लोग बदल रहे होते हैं. तो आपने तो जॉब चेंज की थी, तो कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है तो उसको, उससे लर्न करें. वो कहते हैं नहीं, आप हारते हैं या आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, तो सीखें इस चीज से, बेहतर प्लान करें. हो सकता है नेक्स्ट वो आपकी वो तमाम इन कमियों को पूरा कर दे और आप इससे बहुत ऊपर चले जाएं. तो इसी से काम करते हैं. लास्ट मैसेज, वन लाइनर मैसेज उस्मा टू आवर ऑडियंस. लास्ट मैसेज जो है वो मुझे ऐसे लगता है हमने जो ये सेशन इतना जो अच्छा डिस्कशन हुआ है, अगर इसमें से कोई कोई एक भी टेक अवे ले लेता है और वो उसको हेल्प आउट करता है उसकी लाइफ में, तो मुझे लगता है हमारे सेशन का पर्पस अचीव हो जाएगा. मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो सक्सेस है ना, आप जितना अच्छा ये बैलेंस मेंटेन करेंगे, इट विल अश्योर योर सक्सेस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक जो था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मजे का है. थैंक यू सो मच. फरकुली साहब,
Sir, your last message for the audience. I think वही जो पहले बात हुई थी, of course, you know, have gratitude in life. एक तो वो याद रखें, और दूसरा मकसद हयात याद रखें, जो भी है जितना भी आपकी ज़िंदगी में, बट वो आपकी गाइडिंग लाइट रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर वट एवर योर अल्टीमेट एम इन लाइफ इज, खुद खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, कोई बेहतरी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, बट वो याद रखें, उस वो एक रहेगा तो ज़रा आपको जितना जितना आप करीब पहुंचते जाएंगे उस मकसद के, उतने आपको यू नो खुशी भी रहेगी और इत्मीनान भी रहेगा ज़िंदगी में. बहुत शुक्रिया फखरी साहब आपका उसमें आज पहला सेशन था. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम फिर आपको बुलाएंगे तो आप जरूर आएंगी. ठीक है. और फखरी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आज बहुत अच्छा सेशन रहा, अच्छी क्वेश्चंस भी अच्छे थे, गुफ्तगू भी अच्छी रही. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और लर्नेड स्पीकर के साथ हम फिर हाजिर होंगे. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज़.